Today I will discuss numericals for calculation of national income through value added method. In my previous video, I have discussed all the important points in regarding to the value added method and also the formulas to calculate national income through value added method. प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर चुका हूँ. ओके, so if you go through my previous video, it is value added method, measurement of national income, you can get all the important points to solve the numerical problems. So today in different angles I can solve the problems for calculating national income through value added method. So different steps are there to calculate national income through value added method. First step, you calculate GVAMP. आपको फर्स्ट निकालना है GVAMP, gross value added at market price. It is also called GDPMP, gross domestic product at market price. Formula is value of output minus intermediate consumption. In value of output, you consider three things. One is sales, production for self consumption प्लस चेंज इन स्टॉक. प्रोडक्शन के बाद हम प्रोडक्शन का कुछ पार्ट खुद के पास रखते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए और उसको बेचते हैं रिलेटेड टू द सेल्स. देन अनसोल्ड गुड्स स्टैक अप और एक्युमुलेट इन go down. In numerical, change in stock is not given. It is closing stock and opening stock given. So here how to find change in stock? It is closing stock minus opening stock. Numerical, increase in stock given. Increase in stock, it is closing stock greater than opening stock. So increase in stock, it must be added. Decrease in stock, closing stock less than opening stock. So decrease in stock, it must be subtracted. Okay, so first you charge in numerical. Clear? So GVOMP is same as value of output. So value of output is equal to sales plus production for self consumption plus change in stock. Exports included in sales. If sales given, then separately we should not have considered exports. Clear? If domestic sales given, then exports included. Exports means selling goods in the foreign markets. क्लियर? सेल्स दिया है, ओनली सेल्स लेना है क्योंकि एक्सपोर्ट सेल का पार्ट है. डोमेस्टिक सेल्स गिवन तब हमको एक्सपोर्ट को ऐड करना है. क्लियर? कभी कभी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया है तो छोड़ दो. क्लियर? कभी कभी स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, इट इज रिलेटेड टू द चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, पेमेंट टू द लॉयर, expenditure incurred on repairs, okay, and color the buildings, factory buildings. First step. Then first you calculate GVAMP, it is value of output minus intermediate consumption. Second step, NVAMP, gross to net. Simply depreciation must be subtracted. We know that जब gross से हम net को आएंगे तब depreciation subtract करना. Depreciation alternate name consumption of fixed capital और also replacement of fixed capital. Clear? It is NVAMP. Then NVAFC, MP to FC. NVAFC, it is the domestic income. It is NDPFC. In value added method, NVAFC is same as NDPFC. It is the domestic income. So MP to FC, net indirect taxes subtracted. Net indirect taxes subtracted. It means indirect taxes subtracted, subsidies added. Indirect tax, taxes on production, alternate name, it is GST, single uniform tax system. Now it is prevailed. All other like sales tax or excise duty,
everything merged in the GST. Taxation, production, GST, it is indirect taxes. Subsidies, financial assistance, alternate name. You know, subsidies, it is financial assistance providing by the government to small enterprises and farmers for promoting production. So same thing, financial assistance, subsidies, same thing. So NVA MP to NVA FC, MP to FC, indirect taxes subtracted, subsidies added. If NIT given net indirect taxes, then net indirect taxes subtracted. Now NVA FC, it is the domestic income. Then calculate national income. We know that domestic to national, NFI, net factor income from abroad. It must be added. Net from, it must be added. Net to, net factor income to abroad, it must be subtracted. So domestic to national, you search NFI, net factor income from abroad. If net from given, then you add. If net factor income to abroad given, it must be subtracted. Clear? So you see one question, CBSE 2020. Okay, in previous year, this question was coming. In VAFC given, it is the domestic income in value-added method. In VAFC given, subsidies given. So question is asking calculate change in stock. So change in stock, it is missing here. Depreciation, change in stock, it is the part of value of output. Depreciation given, alternate name, consumption of fixed capital or replacement of fixed capital. Intermediate consumption directly given. Very easy one. So let change in stocks rupees X crores. Then calculate first step in value added method, calculate GVAMP, gross value added at market price. It is GDPMP. Na? So it is GVOMP, it is value of output. GVOMP, gross value of output at market price, it is value of output minus intermediate consumption. So GVOMP, three parts are there. One is sales, production for self consumption, change in stock. But production for self consumption in the question it is not given. So value of output is equal to sales plus change in stock. Okay, minus intermediate consumption directly it is given. So here in bracket I have written GVOMP, value of output is equal to sales plus change in stock. Only for understanding. Okay, when you calculate then आपको लिखना नहीं है GVOMP is equal to, only for समझाने के लिए, only for your understanding I have written. Okay, otherwise it means there is no need to write down GVOMP is equal to sales plus change in stock. Clear? Then sales it is 400 crores it is given. Change in stock already, it means already we have taken. Late it is X crores minus intermediate consumption 100 crores directly given. Then calculate GVAMP, it is rupees 300 plus X crores. So here you see first second bit NVAFC given, it is the domestic income. So it means you move towards to calculate NVAFC. So you got GVAMP, then NVAMP, gross to net, depreciation subtracted. It means depreciation subtracted from GVAMP. You know that gross to net, depreciation subtracted. Depreciation को subtract करना है. So depreciation it is 40 crores. Okay, it is rupees 260 plus X crores. It is NVAMP. Then NVAFC, it is the domestic income. Or NVAFC in the question it is clearly given. So MP to FC you see, NVAMP, NVAFC, MP to FC, net indirect taxes subtracted if it is given. If net NIT is not given, then subtract indirect taxes, added subsidies. Indirect tax it is GST, taxes on production, like this. Subsidies, financial assistance, alternate name. So here indirect taxes, subsidies separately given. So MP to FC, indirect taxes subtracted, subsidies added with NVAMP. Then it is 270 plus X crores. You got NVAFC. But in question NVAFC given, NVAFC to rupees 200 crores. Then calculate the value of X. So here X is equal to minus 70. It means change in stock is minus 70 crores. Minus 70 means decrease in stock. It means closing stock less than opening stock. There is no need. Here change in stock minus rupees minus 70 crores. It is the answer. Clear? Second question you see, calculate sales from the following data. Another thing you remember, it means also calculate sales is equal to price into quantity. In some questions actually quantity of output sold it is given. Okay, वस्तु की कितनी मात्रा बेचा जाता है वो दिया गया है और प्राइस पर यूनिट ऑल्सो गिवन. क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड गिवन, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट गिवन.
then sales is equal to price into quantity. Okay, here you see calculate sales. Again NVAFC given, it is rupees in lakhs. Okay, NVAFC given, it is rupees 300 lakhs. Intermediate consumption given, indirect tax given, indirect tax GST, depreciation given, change in stock given. So here you consider missing is sales. So let sales is equal to rupees X lakhs. Similarly, first step is GVMP, it is GDPMP, gross value added at market price. It is value of output minus intermediate consumption. So value of output, GVOMP, you search three things: sales, production for self consumption, change in stock. But here production for self consumption is not given. Production for self consumption नहीं दिया गया है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में ओके थ्री थिंग्स एडेड होता है. एक है हम खुद के पास जो रखेंगे स्व उपभोग के लिए, और जो बेचेंगे सेल्स, और जो अनसोल्ड गुड्स को हम स्टॉक करेंगे, वही सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. मगर ये न्यूमेरिकल में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया गया है. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट गिवन. क्लियर? So GVOMP, it is sales, within bracket you see sales plus change in stock, it is the value of output, minus IC, intermediate consumption, directly it is given. So calculate GVMP, it is rupees X minus 250 lakhs. Then again just you move towards to calculate NVAFC. It is the domestic income in value added method. Okay, if you get NVAFC, then definitely you can get the value of sales. So already you got GVMP. Then calculate NVAMP. GVAMP to NVAMP, only G, gross to net. Gross to net, depreciation must be subtracted. In the question, depreciation given. Alternate name of depreciation is consumption of fixed capital or replacement of fixed capital. But here depreciation given. So already you got NVAMP, it is rupees X minus 280 lakhs. Then calculate NVAFC. NVAFC, you see, you got NVAMP, then calculate NVAFC. It is the third step of value added method. NVAFC, it is the domestic income. It is also given in the question. NVAFC, okay, a market price to factor cost. When market price to factor cost, then you know that NIT, if in the question NIT directly given, then NIT is subtracted. But in this question NIT is not given. So indirect taxes subtracted. Indirect tax means GST. GST subtracted, subsidies added. Alternate name of subsidies is financial assistance. GST given, GST means taxes on production, taxes on goods and services, in different ways given. Indirect taxes given, GST given, taxes on production of goods and services given, taxes on production given, same thing. So here MP to FC, okay, indirect taxes subtracted, subsidies added with NVAMP. So you got it is X minus 300 lakhs, but here subsidy is not given. Okay, MP to FC, most important one, just to remember, MP to FC, indirect tax given GST, GST subtracted, subsidies added, but subsidies in the question subsidies is not given. Subsidies नहीं दिया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया है, तो ठीक है, ओनली GST को सब्ट्रैक्ट करना है. मगर you must have written the formula. It means MP to FC, IT is subtracted and subsidies added, but subsidy is not given. For this reason I have written here, subsidy is not given. So you got NVAFC. In the question NVAFC, it is clearly given. NVAFC, it is 300 lakhs. So NVAFC is equal to rupees 300 lakhs. So X minus 300 is equal to 300. NVAFC already you got. So in the form of X, then it is 300 lakhs, it is given. Then calculate the value of X. Clear? It is 600 lakhs. Similarly, calculate intermediate consumption. Next question. It is intermediate consumption is missing. Value of output given. Net value added at factor cost, NVAFC given. GST given. GST indirect taxes. Subsidies given. Depreciation given. So here you consider intermediate consumption. It is equal to rupees X lakhs. Okay. Similarly, calculate GVMP. First step of value added method. So first step, calculate value of output. आपको value of output निकालना है. So GVOMP minus intermediate consumption. But in this question, value of output, it is directly given 200. So value of output is same as gross value of output at market price, GVOMP. So directly it is given. So very easy one. Okay. First step GVOMP you got, because here intermediate consumption is missing. So already we have taken, it is X lakhs. So it is rupees 200 minus X lakhs.
Clear? Then G to N, GVAMP to NVAMP, gross to net, depreciation must be subtracted. Okay, then it is rupees 180 minus X lakhs. Depreciation it is given in the question, 20 lakhs, rupees 20 lakhs given. Alternate name is consumption of fixed capital or replacement of fixed capital. So you got NVAMP, then calculate NVAFC, it is the domestic income. Okay, here NDPFC, it is the domestic income in the value added method. So it is NVMP, you know that MP to FC already have discussed. Indirect taxes subtracted, subsidies added. In the question if NIT given, net indirect taxes directly NIT subtracted. But here NIT is not given, NIT नहीं दिया गया है. इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, सब्सिडीज दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है. इनडायरेक्ट टैक्स इट इज जीएसटी, हियर जीएसटी गिवन. ओके, सब्सिडीज ऑल्सो गिवन. देन कैलकुलेट एनवीएफसी, इट इज रुपीज 170 माइनस एक्स लैक्स. बट एनवीएफसी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन में एनवीएफसी दिया गया है, डोमेस्टिक इनकम. क्लियर? देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन. क्लियर? Similarly, next one is very important one. Find net value added at factor cost, NVAFC. Calculate domestic income. It is the in value added method. NVAFC is the domestic income. It is same as NDPFC, net domestic product at factor cost. Okay, in income method you know that NDPFC is the domestic income, na? Actually NDPFC is the symbol, okay, of domestic income. But in value added method it is NVAFC, net value added at factor cost. Here price per unit of output given, output sold given. So कितना आउटपुट बेचा गया वो दिया गया है, और पर यूनिट को कितना प्राइस में बेचा गया दिया गया है. सो इट इज सेल्स, यू नो दैट वन फॉर्मूला इज देयर इन माय प्रीवियस वीडियो. यू सी सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड. प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड. योर सेल्स इज नॉट गिवन, योर सेल्स इज द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट. सो सिंपली प्राइस इनटू आउटपुट, इट इज सेल्स. Clear? GST given, depreciation given, change in stock. Change in stock it is given minus 500. It is actually decrease in stock, but change in stock it is negative. It is given. Minus means it decrease in stock. Intermediate cost given. Directly IC given. So first you calculate sales. I told na, it is price into quantity of output sold. It is rupees 25,000. Then first step GVMP. Again it is value of output minus intermediate cost. Directly intermediate cost given. So value of output is sales plus change in stock. Okay, value of output actually one part is there, it is production for self consumption, मगर ये नहीं दिया है. ये 3 parts है, sales, production for self consumption plus change in stock. Clear? But here production for self consumption नहीं दिया गया है, तो sales already you got. In this question you see sales is missing. So how to calculate sales? Sales नहीं दिया गया है, आपको sales कैसे calculate करना है ना, price into quantity of output sold. Okay, so calculate already you got sales. So GVMP, first step of value added method, sales plus change in stock. Okay, value of output you got minus intermediate cost, directly intermediate cost given. So you got GVMP. Then calculate NVAMP. NVAMP gross to net. Gross to net, depreciation subtracted. In the question depreciation is given. Alternate name is consumption of fixed capital, CFC. CFC symbolic form, and replacement of fixed capital. But here depreciation given. So gross to net, depreciation subtracted from GVMP. Okay, it is 16,500. Then calculate domestic income, NVAFC. NVAFC, you know that MP to FC. NVAMP to NVAFC. MP to FC. Indirect taxes subtracted, subsidies added. Okay, in question if directly NIT given, NIT subtracted. But here NIT is not given. NIT नहीं दिया गया है, तो indirect tax को subtract करना है, subsidies को add करना है. Indirect tax क्या है? GST है. GST, टैक्सेशन प्रोडक्शन, टैक्सेशन गुड्स एंड सर्विसेज, सेम थिंग है. और सब्सिडीज फाइनेंशियल असिस्टेंस, बार बार मैं बोल रहा हूँ. सो कैलकुलेट एनवीएफसी. बट हियर सब्सिडीज नहीं दिया है. ओके, क्वेश्चन में सब्सिडीज नहीं दिया है, तो ओनली जब एमपी टू एफसी, एनवीएमपी टू एनवीएफसी आपको आना है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, और सब्सिडीज नहीं दिया है तो छोड़ दो. ठीक है, पर आपको स्ट्रिक्टली सिस्टमेटिकली जाना है. ग्रॉस टू नेट, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना है. एमपी टू एफसी, एनआईटी दिया है, एनआईटी सब्ट्रैक्ट करना है. एनआईटी नहीं दिया है तो सेपरेटली इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एनवीएफसी. इट इज रुपीज इन लाख्स. डायरेक्टली डोमेस्टिक इनकम को आपको निकालना है, क्योंकि एनवीएफसी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज द डोमेस्टिक इनकम इन वैल्यू एडेड मेथड. हियर ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गिवन, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विथ ए लाइफ स्पान ऑफ 10 years. इसका अर्थ क्या है? एक प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स लाइफ स्पान, ओनली फिक्स्ड एसेट को हम प्रोलॉन्ग ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं.
सो सपोज यार प्रोड्यूसर गुड क्या है, मशीन है, मशीन का कॉस्ट प्राइस है इट इज 10 lakhs, इट इज गिवन ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विथ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years, इसका प्राइस दिया गया है देखो ₹10 lakhs, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूसर गुड हियर इट इज मशीन, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इज 10 lakhs दिया गया है और उसको 10 साल तक हम यूज करेंगे, 10 years के बाद ऑटोमेटिकली इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। ओके, इसका लाइफ जो है लाइफ स्पैन है 10 years, 10 years तक हम इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, ये दिया गया है तो डेप्रिसिएशन आराम से निकल जाएगा। ओके, इफ इट इज गिवन इट इज ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स with a lifespan of 10 years, it is 10 lakhs given, so calculate depreciation. Okay, every year the producers keep it means maintain depreciation fund, because after 10 years this machine must be replaced by new one, because after 10 years actually it must be outdated one, obsolete one, ये पुराना हो जाएगा, इसको फेंकना पड़ेगा 10 साल के बाद, तो इसीलिए हमको पूरा 10 साल तक हमको डेप्रिसिएशन फंड रिजर्व करना है। तो एवरी ईयर आपको कितना डेप्रिसिएशन फंड में रखना है ना, इट इज फॉर्मूला इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन, फॉर लाइफ स्पैन मीन्स हाउ मेनी ईयर्स द मशीन कैन बी यूज्ड, सो यहाँ पर 10 लाख से कॉस्ट प्राइस और 10 साल तक यूज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ 1 लाख, इट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन, तो 10 साल तक हमको एवरी ईयर 1 लाख रखना है, तो हमको जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन क्या होगा 1 लाख होगा। Then single use producer goods, single use producer goods also raw materials, single you know producer goods two types, one is single use, another type fixed assets repeatedly used, okay, again and again used in the production process, a machine, tools, equipments and rooms of the factory building, so single use producer goods raw materials, suppose you see in furniture industry wood and jute, similarly sugar industry sugarcane, cotton textile industry cotton, okay, printing press paper and printing ink, so fuel also, okay, you consider fuel, money, single use producer goods, only once it must be used by the producer to produce the final commodity, so single use producer goods means it is intermediate goods, okay, raw materials, okay, it must be used up in the production process to produce the final commodity, intermediate goods, you know, and also after production it must be merged with the final commodity, merge हो जाएगा raw material, सपोज आप वुड को लेकर फर्नीचर बनाओगे, तो फर्नीचर बनने के सोफा सेट बनाओगे, सोफा सेट बनने के बाद वुड उसमें मर्ज हो जाएगा, तो वो वुड क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड है, वो फाइनल गुड में मर्ज हो जाएगा, वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, बिकॉज इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, सो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स, उसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है 5 lakhs, so 5 lakhs is the intermediate consumption, so single use producer goods just to remember raw materials, वही इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, सो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स, इट मीन्स रॉ मटेरियल्स, ओके, सेल्स गिवन ऑन सोल्ड आउटपुट, इट इज द चेंज इन स्टॉक, यू नो दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट 3 parts आर देयर, वन इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, सेल्स, एंड थर्ड पार्ट जो बेचा नहीं जाएगा, इट मीन्स ऑन सोल्ड आउटपुट मस्ट बी स्टैक ऑफ इन द गोडाउन, so change in stock means it is the change in stock of unsold output, it is given. Taxation production, it is the indirect tax, taxes on production, taxes on goods and services, GST, it is everything, it is indirect taxes. So similarly first you calculate GVOMP value of, first you calculate sales plus change in stock, change in stock means it is unsold output, here it is clearly given unsold output produced during a year, sales plus change in stock, so you got GVO value of output, you got rupees 22 lakhs. Then first method GVMP value of output, GVOMP minus IC, here IC is intermediate consumption, is single use producer goods, already I told you single use producer goods it is intermediate goods, and value of intermediate goods it is given 5 lakhs, so intermediate goods के ऊपर 5 लाख खर्च हो रहा है, बस single use producer goods के ऊपर 5 लाख खर्च हो रहा है, clear. Producer goods two types, single use producer goods and again fixed assets like machine, tools and equipments used repeatedly in the production process, you know, but single use means you consider raw materials, okay, so it is the intermediate consumption. Then already you got GVMP, it is rupees 17 lakhs. Then here depreciation you calculate, how to calculate depreciation, because gross to net means we need what, depreciation or consumption of fixed capital, so here how to calculate depreciation, now एक machine दिया गया है उसका cost price 10 lakhs है, फर्स्ट बीट देखो, बीट
आगे है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इज 10 लाख और उसको 10 ईयर्स लाइफ स्पैन 10 ईयर्स है, तो एवरी ईयर कितना खर्च करना है, डिप्रिसिएशन फंड में कितना रखना है, 1 लाख. ओके, इसको 10 साल के बाद हम ये मशीन को क्या करेंगे, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, तो हमको डिप्रिसिएशन फंड मेंटेन करना है प्रोड्यूसर्स को. तो हियर हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, ना इट इज cost price of the machine divided by lifespan, so it is rupees 1 lakh. Clear? Then calculate NVAMP, GVAMP to NVAMP, depreciation must be subtracted. Then NVAFC, domestic income, MP to FC minus indirect taxes plus subsidies. Index here given, taxes on production given plus subsidies, but in question subsidies is not given, so leave it. So you got rupees 15 lakhs. So here important points कुछ remember करना है. देखो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर, सेल्स टू फार्म ए बाय फार्म बी, जस्ट यू रिमेंबर, जब फार्म ए फार्म बी को बेचता है तो फार्म बी फार्म ए से खरीदता है, सेम थिंग. सेल्स टू फार्म ए बाय फार्म बी, इट मीन्स फार्म बी सेलिंग टू फार्म ए, देन ऑल्टरनेटिवली परचेज ऑफ फार्म ए फ्रॉम फार्म बी, सेम थिंग है. बी ए को बेचता है तो ए बी से खरीदता है. फार्म बी सेलिंग टू फार्म ए, सो फार्म ए परचेज फ्रॉम फार्म बी, सेम थिंग है. Okay, just to remember, sales to farm B by farm A, same thing. Sales to farm B by farm A, farm A farm B को बेचता है, farm A farm B को बेचता है, so farm B farm A से खरीदता है. Okay, farm A selling to farm B, so farm B purchase from farm A, same thing. So here you consider in this question just value added, it is domestic sales. So related to the farms, you see, suppose you calculate value added of each farm. Suppose number of farms given, farm A, farm B, farm C, farm D, it is given. So how to calculate the value added of particular farm, value added of each farm. In the question if domestic sales given, it means sales within the domestic territory, तो तब exports को आपको लेना है. तो हो गया domestic sales, हो गया exports, हो गया. तो domestic sales क्या करेगा, वो फार्म ना वो हाउस होल्ड सेक्टर को बेचेगा, हमको बेचेगा, और अदर फार्म्स को बेचेगा. जिसको जिसको बेचेगा उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट में लेना है. जस्ट रिमेंबर, टू होम the particular farm selling the commodity, okay, it is in value added, okay, value of output. So value of output for particular farm, it is domestic sales plus exports plus selling to the household sector plus stock. जिसको जिसको बेचेगा प्लस स्टॉक, स्टॉक है अनसोल्ड, जो बेचा नहीं जाएगा उसको स्टॉक करेगा. यू रिमेंबर, इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट. अगेन मैं बोलता हूं, जो पर्टिकुलर फार्म के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है ना, जिसको जिसको बेचेगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर को बेचा, वो अदर फार्म्स को बेचा, ओके, और फॉरेन मार्केट्स में बेचा, फॉरेन मार्केट्स में जो बेचेगा वो एक्सपोर्ट से. ओके, सो इट इज गिवन, इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट. यू सी, डोमेस्टिक सेल्स टू अदर फार्म्स एंड हाउस होल्ड्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ द फार्म. यदि ओनली सेल्स गिवन, देन इट मीन्स यू डू नॉट कंसिडर एक्सपोर्ट्स. सेल्स मीन्स इट मीन्स इनसाइड द टेरिटोरी. Okay, selling to household sector, selling to other farms and selling in the foreign market, सब कुछ सेल्स में आ जाएगा. और प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. और प्रोडक्शन पर सेल कंजप्शन दिया है, लेना है. चेंज इन स्टॉक को लेना है कंपलसरी, और प्रोडक्शन पर सेल कंजप्शन लेना है पर्टिकुलर फार्म के लिए. और अदर केस में डायरेक्टली सेल्स दिया है तो आपको डोमेस्टिक सेल्स, इट मीन्स सेलिंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर, सेलिंग टू अदर फार्म्स, ये सब नहीं लेना है, क्योंकि सेल्स टू ऑल, सेल्स टू हाउस होल्ड सेक्टर, सेल्स टू अदर फार्म्स एंड सेलिंग इन द foreign market. Selling in the foreign market means exports. But in question it is given selling to household sector, selling to other farms, exports. Okay, सबको ऐड करना है. सबको ऐड करोगे तो सेल्स मिलेगा. Selling to household sector plus selling to other farms plus exports. Exports means selling in foreign markets. Then plus change in stock of the farm. और प्रोडक्शन पर सेल कंजप्शन, फार्म कुछ रख रहा है खुद के पास सोपोवो के लिए, उसको भी लेना. ओके, और माइनस जो इंटरमीडिएट कंजप्शन आएगा वो जिससे जिससे खरीदता है, वो क्या खरीदेगा, रॉ मटेरियल्स खरीदेगा. एक फार्म के लिए फाइनल आउटपुट है तो अदर फार्म के लिए वो रॉ मटेरियल्स है. ओके, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, फार्मर का जो फाइनल आउटपुट है वो व्हीट है, मगर वो जब बेचेगा मिलर को तो मिलर के लिए वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, क्योंकि मिलर के लिए फाइनल आउटपुट फ्लोर है. समझ आ रहे कि नहीं? फॉर फार्मर इट मीन्स फाइनल आउटपुट इज व्हीट, बट व्हेन द फार्मर सेलिंग व्हीट टू मिलर, then for miller wheat is an intermediate good, because again miller used up wheat to produce flour. तो जो भी खरीदेगा एक पर्टिकुलर फार्म के लिए, फार्म जहां जहां से खरीदेगा
जहां जहां से खरीदेगा वो सब इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा. So domestic purchases plus imports. Only it means purchases given. Okay, only purchases given. Then you do not consider domestic purchases or imports. ये नहीं लेना है. मगर domestic purchases दिया है तो आपको imports ऐड करना है. Imports means purchase from abroad. समझ में आया कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वैल्यू एडेड, जो वैल्यू प्रत्येक फार्म के लिए जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा वो जिसको जिसको बेचेगा वो सेल्स में आएगा. हाउस होल्ड सेक्टर को बेचेगा, अदर फार्म्स को बेचेगा, फॉरेन कंट्री में बेचेगा, एक्सपोर्ट से, और चेंज इन स्टॉक लेना है और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन लेना है. ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट. और जिससे जिससे खरीदेगा वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा. इट इज इफ ओनली परचेजेस गिवन देन देयर इज नो नीड फॉर डोमेस्टिक परचेजेस. इंपोर्ट्स को नहीं लेना है सेपरेटली. मगर डोमेस्टिक परचेजेस दिया है तो इंपोर्ट्स लेना है, क्योंकि इंपोर्ट्स मीन्स परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड. तो यहाँ पर सेल्स बाय फार्म है, ओनली सेल्स बाय फार्म में दिया है, मीन्स एक्सपोर्ट्स नहीं लेना है, क्योंकि सेल्स में एक्सपोर्ट्स आ गया. सेल्स मीन्स सब कुछ आ गया. हाउस होल्ड सेक्टर से सेलिंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर, सेलिंग टू अदर फार्म्स एंड सेलिंग इन फॉरेन मार्केट्स. तो सेल्स दिया है मीन्स पर्टिकुलर फार्म के लिए सेल्स दिया है मीन्स और कुछ नहीं लेना है, ओनली सेल्स लेना है. ओके, आपको हाउस होल्ड सेक्टर को बेचा कि फार्म्स को बेचा कि एक्सपोर्ट्स, ये कुछ नहीं लेना है, वो सेल्स में सब कुछ आ जाएगा. सिमिलरली परचेज बाय फार्म, मैं बार बार बोला ना अभी, परचेज बाय फार्म ये दिया है मीन्स आप किससे किससे वो खरीदेगा और नहीं लेना है. परचेज फ्रॉम अदर फार्म्स, परचेज फ्रॉम अब्रोड, इट इज इंपोर्ट नहीं लेना है. परचेज बाय फार्म मीन्स वो सब कुछ उसी में आ जाएगा. परचेज फ्रॉम अदर फार्म्स उसी में आएगा. इंपोर्ट्स, ओके, परचेज फ्रॉम अब्रोड उसी में आएगा परचेज बाय फार्म, तो उसको नहीं लेना है, इंपोर्ट्स को अलग. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फार्म ए एंड बी सेपरेटली, कैलकुलेट वैल्यू एडेड by farm A and farm B and GDPMP. It is given exports by farm A, imports by farm A, sales to household by farm A, sales to farm B by farm A, sales to farm A by farm B, sales to households by farm B. It is given, but first you calculate value added by farm A. So value added particular farm के लिए मैं बोला, जब आप value added निकाल रहे हो उसका value of output निकालो. Value of output में वो किसको किसको बेचा और उसका चेंज इन स्टॉक क्या है. सो तीन चीज लेना है, किसको किसको बेच रहा है सबको लेना है. सेलिंग टू आपको ढूंढना है, वो हाउस होल्ड सेक्टर को बेच रहा है उसको लेना है, अदर फार्म्स को बेच रहा है उसको लेना है, चेंज इन स्टॉक उसको लेना है, जो स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स उसको लेना है. समझ में आ रहा है कि नहीं. और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन खुद के लिए रख रहा है उसको भी लेना है वैल्यू ऑफ आउटपुट में. और इस क्वेश्चन में क्या है, डोमेस्टिक सेल्स दिया है, एक्सपोर्ट्स. ओके, सो यहाँ पर देखिए वो किसको किसको बेच रहा है. फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ही, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस डोमेस्टिक परचेजेस और इंपोर्ट्स में ले लिया. मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है वो किससे किससे बेच रहा है, हाउस होल्ड को बेच रहा है और बी को बेच रहा है. सेल टू फार्म बी, हियर यू सी, सेल्स टू फार्म बी बाय फार्म ए बी को बेच रहा है, ये ऑलरेडी दिया गया है. ओके, ये दोनों. और इसमें सेल्स टू हाउस होल्ड को बेच रहा है, बी को फार्म बी को बेच रहा है, और एक्सपोर्ट्स भी दिया है. तो तीनों को लेना है वैल्यू ऑफ आउटपुट. चेंज इन स्टॉक यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ दो. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं है, तो किससे किससे खरीद रहा है ना, वो बी से खरीद रहा है. बी से खरीद रहा है, यहां पर दिया है देखो, यहां पर देखो बी से खरीद रहा है, यहां पर दिया है फिफ्थ बिट, सेल्स टू फार्म ए बाय फार्म बी. फार्म बी फार्म ए को बेच रहा है. सो फार्म बी फार्म ए को बेच रहा है मीन्स फार्म ए फार्म बी से खरीद रहा है. सेम थिंग ना. सेलिंग बाय फार्म बी टू फार्म ए इज सेम एज फार्म ए परचेज फ्रॉम फार्म बी, तो सेम थिंग है. तो बी से माइनस परचेज फ्रॉम फार्म है, और इंपोर्ट्स ये भी दिया है. तो आपको रिमेंबर करना है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में वो किसी को किसको बेच रहा है. सेल्स टू हाउस होल्ड सेक्टर, सेल्स टू अदर फार्म्स, एक्सपोर्ट्स, सेल्फ कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ये सब कुछ लेना है वैल्यू पर. जो नहीं है नहीं है. यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स दिया है, सपोज यहाँ पर किसको किसको बेच रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को बेच रहा है, फार्म बी को बेच रहा है, और एक्सपोर्ट्स सेल्स इन द फॉरेन मार्केट वही लेना है. और जिससे जिससे खरीद रहा है बी से, फार्म बी से खरीद रहा है, और इंपोर्ट्स परचेज फ्रॉम अब्रोड, वही इंटरमीडिएट, जिससे जिससे खरीद रहा है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा. सो इट इज ₹70 लाख हो गया वैल्यू एडेड फॉर फार्म ए. सिमिलरली उसी वैल्यू एडेड बाय फार्म बी. फार्म बी का आप देखो वो किसको किसको बेच रहा है, टू हुम, फार्म बी. ओके, सेलिंग द आउटपुट. यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है सेल्स टू हाउस होल्ड को बेच रहा है, फार्म बी हाउस होल्ड को बेच रहा है, फार्म ए को बेच रहा है, फार्म ए को बेच रहा है. यहां पर क्लियरली गिवन सेल्स टू फार्म ए बाय फार्म बी दिया है, क्लियर. तो ये दोनों दिया है.
हाउस होल्ड को बेच रहा है, फार्म ए को बेच रहा है। ओके, एक्सपोर्ट्स नहीं है, वो फॉरेन मार्केट्स में नहीं बेच रहा है, नहीं दिया है। चेंज इन स्टॉक भी नहीं है, फार्म बी के लिए चेंज इन स्टॉक अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, छोड़ दो। तो आपको सभी किसी को बेच रहा है उसको देखना है, चेंज इन स्टॉक को देखना है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन देखना है। तो आपको वही 3 चीज देखना है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्स में वो किसको किसको बेच रहा है देखना है, सेलिंग टू होम, सेलिंग टू हाउस होल्ड सेक्टर, सेलिंग टू अदर फार्म्स, दिया हुआ तो ऐड करना है। और सेलिंग इन फॉरेन मार्केट्स तो वो एक्सपोर्ट से। और चेंज इन स्टॉक आपको आज यूजुअल लेना है, सेकंड पार्ट चेंज इन स्टॉक, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक पार्ट है। और प्रोडक्शन फॉर सेलिंग उसको लेना है, उसको नहीं भूलना है। और जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो किससे किससे खरीद रहा है, डोमेस्टिक टेरिटोरी से और अब्रोड से जो खरीदेगा वो इंपोर्ट से, और डोमेस्टिक टेरिटोरी से जो खरीदेगा वो डोमेस्टिक परचेज है। और यहाँ पर दिया है परचेज फ्रॉम फार्म ए दिया है, ओनली इंपोर्ट्स नहीं है, बाहर से कोई नहीं खरीद रहा है। तो वैल्यू एडेड आपको मिल गया, दोनों का वैल्यू एडेड मिल गया सेपरेटली, फार्म ए का और फार्म बी का। तो यहाँ पर जो सेकेंड बीट का क्वेश्चन दिया गया है उसी जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी कैसे निकालना है ना, दोनों का वैल्यू एडेड आपको ऐड कर देना है। टू रिमेंबर जीडीपी एमपी मींस सम ऑफ द वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फार्म्स, सभी फार्म्स का वैल्यू एडेड को ऐड करना है, तब हमको जीडीपी एमपी मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मेरा प्रीवियस वीडियो देखो जो वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो फॉर्मूलाज का वीडियो है, उसमें मैं क्लियरली मेंशन किया जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फार्म्स, सभी फार्म्स का वैल्यू एडेड अलग अलग निकालना है। फर्स्ट कैलकुलेट वैल्यू एडेड ऑफ ईच फार्म, देन add it is GDP MP. So here only 2 farms given, farm A and farm B. Okay, और दोनों का आप वैल्यू एडेड निकाल दिया, ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड वैल्यू एडेड ऑफ फार्म ए एंड वैल्यू एडेड ऑफ फार्म बी, दोनों को ऐड कर दो, सो इट इज जीडीपी एमपी। समझ में आया? नेक्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फार्म ए, फार्म बी एंड जीडीपी एफसी निकालना है, रुपीज इन लाख्स। यहाँ पर सेम डाटाज दिया है, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग में वैल्यू एडेड बाय फार्म है, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना है, फार्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना है, वो डायरेक्टली सेल्स दिया है तो सबको सेल्स कर रहा है, उसमें सब कुछ आएगा, सेलिंग टू हाउस होल्ड सेक्टर, सेलिंग टू अदर फार्म्स, एक्सपोर्ट्स, सब कुछ आएगा। तो और कुछ नहीं लेना है, सेल्स दिया है, सेलिंग टू हाउस होल्ड सेक्टर दिया है, सेलिंग टू अदर फार्म्स, ये सबको नहीं लेना है, सेल्स में सब कुछ आ जाएगा, सेलिंग टू हाउस होल्ड सेक्टर, सेलिंग टू अदर फार्म्स, एक्सपोर्ट्स, सेलिंग इन फॉरेन मार्केट, सब आएगा, उसको नहीं लेना है। ठीक है, ओनली सेल्स यू रिमेंबर, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट नहीं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, मैं बार बार बोला चेंज इन स्टॉक, जब भी न्यूमेरिकल में क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अलग अलग देता है तो उसका डिफरेंस निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया है, माइनस किससे किससे खरीद रहा है, देखो ओनली परचेज फ्रॉम फार्म बी, ओनली परचेज फ्रॉम फार्म बी, इट इज गिवन यू सी, purchases from farm A by farm B, here given purchases from farm B by farm A, here given purchases from farm A, here given, it is clearly given purchases from farm A by farm B. ओके, फार्म ए से वो खरीद रहा है, फार्म बी फार्म ए से खरीद रहा है, तो सेम थिंग है, परचेजेस फ्रॉम फार्म ए बाय फार्म बी मींस फार्म ए सेलिंग टू फार्म बी, सेम थिंग है, जो ए बी को बेच रहा है, सो बी के लिए क्या है, बी ए से खरीद रहा है, तो सेम थिंग है, कंफ्यूजन मत होना, उसको थोड़ा अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर उसका वैल्यू एडेड देखो, इट मीन्स वैल्यू एडेड बाय फार्म ए माइनस परचेजेस फ्रॉम फार्म बी, सो फार्म बी से वो खरीद रहा है तो लेना है। ओके, मैं बार बार बोला जिससे जिससे खरीद रहा है, फ्रॉम होम एक्चुअली फार्म ए, इट मीन्स परचेजेस, अदर फार्म्स, वो अदर फार्म से परचेज कर रहा है उसको लेना है, इंपोर्ट कर रहा है उसको लेना है, मगर ओनली परचेजेस दिया है तो ओनली परचेजेस सब, माने जहां जहां से परचेज और अलग नहीं लेना है, ओनली परचेजेस दिया है, ओनली परचेज लेना है। ठीक है, ओनली परचेजेस नहीं दिया है, परचेज फ्रॉम अदर फार्म्स, इंपोर्ट्स ये दिया है तो उसको ऐड करना है, मगर ओनली परचेजेस दिया है तो परचेजेस फ्रॉम अदर फार्म्स एंड इंपोर्ट्स नहीं लेना है, तो यहाँ पर ओनली बी से वो खरीद रहा है, परचेज फ्रॉम फार्म बी, सो वैल्यू एडेड आपको मिल गया फार्म ए का। सिमिलरली वैल्यू एडेड बाय फार्म बी, सेल्स दिया है, ओके, सेल्स में सब कुछ आएगा, सेलिंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर, सेलिंग टू अदर फार्म्स, एक्सपोर्ट्स, सेपरेटली उसको नहीं लेना है, बिकॉज हियर डायरेक्टली सेल्स गिवन मींस यू टेक सेल्स। देन वैल्यू ऑफ आउटपुट, अदर पार्ट क्या है, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है तो सी एस माइनस ओ एस, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया है तो छोड़ देना है, माइनस किससे खरीद रहा है, देखो ओनली परचेजेस दिया है ना, किससे किससे खरीद रहा है, परचेजेस फ्रॉम फार्म ए, तो उसको लेना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है,
नहीं तो गलत आ जाएगा। कभी कभी परचेजेस फ्रॉम फार्म ए इट मीन्स सपोज इट इज गिवन फार्म ए सेलिंग टू फार्म बी, फार्म ए सेलिंग टू फार्म बी, तो सेम थिंग है, फार्म बी परचेज फ्रॉम फार्म ए। ओके, सो परचेजेस फ्रॉम फार्म ए। और यहाँ पर इंपोर्ट्स नहीं दिया है, इंपोर्ट्स मीन्स परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, तो वैल्यू एडेड निकाल दिया। तो मैं बार बार बोला जीडीपी एमपी, सेकेंड पार्ट आपको जीडीपी एफसी निकालना है, जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एफसी कैसे निकालोगे, जीडीपी एफसी कैसे निकालोगे ना, जीडीपी एमपी फर्स्ट निकालो। जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट इज द वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फार्म्स। सो हियर टू फार्म्स ऑलरेडी यू गॉट वैल्यू एडेड ऑफ फार्म ए एंड वैल्यू एडेड ऑफ फार्म बी, दोनों को ऐड कर दो वैल्यू एडेड, तो आपको जीडीपी एमपी मिल गया। तो आपको निकालना है क्या, जीडीपी एफसी। तो एमपी टू एफसी आना है, एमपी टू एफसी आना है, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। डायरेक्टली एनआईटी दिया है, एनआईटी नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, जीएसटी को ऐड करना है। मगर यहां पर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया होगा दोनों फार्म्स का इनडायरेक्ट टैक्स आपको लेना है, दोनों फार्म का अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स दिया है देखो, नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फार्म्स, हियर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फार्म्स। मगर ये नहीं देगा, कभी कभी देगा, माने इट मीन्स ये दोनों फार्म्स का है ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स माने अलग अलग देगा, तो दोनों का इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है, क्योंकि एमपी टू एफसी आप जानते हो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, इनडायरेक्ट दोनों फार्म का इनडायरेक्ट टैक्स लेना है, और सब्सिडीज दोनों फार्म का सब्सिडीज लेना है, उनको कितना सब्सिडीज मिला। और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फार्म्स गिवन, सब्सिडीज नहीं दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बोला, दोनों फार्म का इनडायरेक्ट टैक्स जो जितना जितना पेड कर रहे हैं अलग अलग देगा। इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय फार्म है, इनडायरेक्ट टैक्स बाय फार्म भी, दोनों को ऐड करना है, तब इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फार्म्स। सिमिलरली सब्सिडीज में सब्सिडीज रिसीव्ड बाय फार्म है, सब्सिडीज रिसीव्ड बाय फार्म भी, दोनों को ऐड करना है। ओके, दोनों का लेना है, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ बोथ द फार्म्स प्लस सब्सिडीज ऑफ बोथ द फार्म्स। बट सब्सिडीज यहाँ पर नहीं दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फार्म्स इट इज डायरेक्टली गिवन। क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ पर लिखा है देखो, indirect taxes means sum of the indirect taxes paid by both the farms, just you remember, it means in IT paid by farm A, IT means indirect taxes, IT paid by farm A plus IT paid by farm B plus IT paid by farm C, सबका IT को ऐड करना है। ये क्वेश्चन में अलग अलग indirect taxes दिया है, सबका indirect taxes को ऐड करना है। MP to FC आओगे तो वो सबका IT को ऐड करोगे, प्रत्येक फार्म का indirect taxes को ऐड करके कंबाइंडली आपको वहां पर indirect tax को सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली सब्सिडीज जो ऐड करोगे MP to FC, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे, सब्सिडीज ऐड करोगे, सब्सिडीज मींस इट मींस तीनों फार्म का सब्सिडीज को ऐड करोगे, अलग अलग दिया है तो कंबाइंडली दिया है तो डायरेक्टली। ओके, सम ऑफ द सब्सिडीज रिसीव्ड, सब्सिडीज मींस सम ऑफ द सब्सिडीज रिसीव्ड बाय द फार्म्स, प्रत्येक फार्म, इट मींस सब्सिडीज रिसीव्ड बाय फार्म ए प्लस सब्सिडीज रिसीव्ड बाय फार्म बी प्लस सब्सिडीज रिसीव्ड बाय फार्म सी, अलग अलग दिया है तो तीनों को ऐड करना है, प्रत्येक फार्म का सब्सिडीज को ऐड करना है और कंबाइंडली वहां पर ऐड करना है। क्लियर, ऐड द सब्सिडी ऑफ ईच फार्म्स। देन अनदर क्वेश्चन कैलकुलेट, यहाँ पर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है। वैल्यू एडेड मेथड में एनवीएफसी इट इज द डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पर परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज, परचेज ऑफ मशीनरी मीन्स इट इज फाइनल गुड है, ये इंटरमीडिएट गुड नहीं है। मशीनरी इट मीन्स यू नो दैट फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर फाइनली यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस। जो मशीन है वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है, मैं बार बार बोला, मैं मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड जो है वो इट मस्ट बी यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस द फाइनल कमोडिटी। इनपुट्स के आकार में वो इसको यूज किया जाएगा फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, और आफ्टर प्रोडक्शन इट मस्ट बी मर्ज्ड विद द फाइनल गुड, वो मर्ज हो जाएगा फाइनल गुड में। मगर जो मशीन है वो बेसिकली फाइनल गुड है, बिकॉज फाइनली यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस। मशीन के ऊपर जो फंड खर्च होता है उसको इन्वेस्टमेंट हम बोलेंगे। और एक है मशीन आफ्टर प्रोडक्शन, मशीन डज नॉट मर्ज विथ फाइनल आउटपुट, वो मर्ज नहीं होगा फाइनल आउटपुट में, बिकॉज मशीन हैज सेपरेट आइडेंटिटी। मशीन टूल्स इक्विपमेंट जो फिक्स्ड एसेट्स है, ओके, जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो मीन्स खर्च होगा वो नहीं लेना है, क्योंकि वो सब फाइनल गुड होगा। ओके, सेल्स दिया है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंटरमीडिएट कॉस्ट डायरेक्टली दिया है, जो इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट कॉस्ट सेम थिंग है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, चेंज इन स्टॉक, एक्साइज टैक्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, इट इज गिवन। ओके, तो कैलकुलेट जीवीएमपी, फर्स्ट स्टेप इट इज जीवीएमपी, सेल्स चेंज इन स्टॉक दिया है माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट डायरेक्टली दिया है, और वहां पर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया है तो छोड़ दो, तो ये निकल गया। फिर एनवीएमपी इट मीन्स जी टू एन डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेप्रिसिएशन नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, मगर आपको जी टू एन जाना है मीन्स डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट लिखना है, मगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है
तो यहाँ पर जब डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा तब जीबीएमपी जितना होगा एनवीएमपी उतना ही होगा. डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन ब्रैकेट, ऑलरेडी हैव रिटन. सो जीबीएमपी एनवीएमपी सेम होगा. देन कैलकुलेट एनवीएफसी. ये आस्किंग ना, क्वेश्चन इज आस्किंग एनवीएफसी इट इज द डोमेस्टिक इनकम, हैव रिटन. तो एमपी टू एफसी आओगे, एमपी टू एफसी आओगे तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे, सब्सिडीज को ऐड करोगे. इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे, सब्सिडीज को ऐड करोगे. तो यहाँ पर सब्सिडीज नहीं दिया है, सब्सिडीज नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक्साइज टैक्स नहीं लेना है, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्साइज टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है. तो अभी एक्साइज टैक्स नहीं है, अभी जीएसटी में आ गया तो कंफ्यूजन के लिए दिया है. यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और एक्साइज टैक्स नहीं लेना है. एक्साइज टैक्स इज द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ जीएसटी में वो भी मर्ज हो चुका है, तो जीएसटी दिया है तो आपको एक्साइज टैक्स नहीं लेना है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर और एक देखो, चेंज इन स्टॉक दिया है तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स नहीं लेना है, बिकॉज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इससे भी यहाँ पर जो चेंज इन स्टॉक है वो चेंज इन स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो वैल्यू एडेड मेथड में. एक्चुअली जो चेंज इन स्टॉक 3 प्रकार का होता है: स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, चेंज इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स और चेंज इन स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स. मगर यहाँ पर ओनली अनसोल्ड गुड्स को लेना है, तो इसको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कुछ नहीं लेना है, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट यहाँ पर दिया है. तो ये जो स्टॉक है आपको चेंज इन स्टॉक में उसको नहीं लेना है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को, क्योंकि चेंज इन स्टॉक में ओनली स्टॉक ऑफ चेंज इन स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, नहीं कि जो बेचा नहीं जाएगा. जो बेचा जाएगा, जो हम खुद के पास प्रोड्यूसर खुद के पास रखेगा स्व उपभोग के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए, और जो बाकी को अनसोल्ड गुड्स को वो स्टॉक करेगा. तो अनसोल्ड ओनली स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सब नहीं लेना है. तो एनबीएफसी इट इज हो गया, यहाँ पर सब्सिडीज नहीं दिया है. क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना है. सब्सिडी दिया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है. नेट एडिशन टू स्टॉक मीन्स चेंज इन स्टॉक, ये कंफ्यूजन नहीं है. नेट एडिशन इंक्रीज इन स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक्स इंक्रीज इन स्टॉक. जब क्लोजिंग स्टॉक ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक उसको इंक्रीज इन स्टॉक कहा जाएगा, उसको नेट एडिशन टू स्टॉक्स कहा जाएगा. कंफ्यूजन नहीं होना है. नेट एडिशन टू स्टॉक्स इंक्रीज इन स्टॉक और सेम है चेंज इन स्टॉक. जीएसटी दिया है, एनवीएफसी भी दिया है. तो आप एनवीएफसी तक चले जाओ. वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्स ले जाओ. ओके, यू टेक सपोज वैल्यू ऑफ आउटपुट रुपीज एक्स lakhs, then just you move towards and calculate NVFC because it domestic income it is given. Okay, so calculate NVFC in the form of X. So first calculate GVMP, it is GVMP value of output minus intermediate consumption. Value of output आपको निकालना है, तो उसको X लिख चुके हो, minus intermediate consumption 150 इंटरमीडिएट डायरेक्टली दिया है. तो NVMP G to N डेप्रिसिएशन माइनस करना है. यहाँ पर डेप्रिसिएशन 30 लाख से. देन एनवीएफसी अलग अलग दिया है, इंडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज. तो इंडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी है, इंडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है, तो ले जाना है. ओके, सब कुछ इंडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडीज भी दिया है, जीएसटी दिया है, सब्सिडीज दिया है. तो एक अभी आ गया. क्लियर? डायरेक्टली यहाँ पर एक्स आ गया, क्योंकि एनवीएफसी यहाँ पर एनवीएमपी माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस. तो यहाँ पर जो एनवीएफसी दिया है क्वेश्चन में लास्ट में 250, मैं यहाँ पर ले लिया, एनवीएफसी की जगह 250 ले लिया. ओके ओके, ले जाने से तो राइट साइड आएगा, सब एक्स में आएगा. तो फर्स्ट यू कैलकुलेट एनवीएफसी इन द फॉर्म ऑफ एक्स, देन एनवीएफसी दिया है तो एक्स क्या वैल्यू निकाल दो. तो यहाँ पर नेट एडिशन टू स्टॉक्स, ये जो क्वेश्चन में था स्पेशलिटी, नेट एडिशन टू स्टॉक्स इज द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में नेट एडिशन चेंज इन स्टॉक है. वैल्यू ऑफ आउटपुट में चेंज इन स्टॉक है, उसको नहीं लेना है. ओके, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालोगे ना, मगर नेट एडिशन स्टॉक्स इज द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आ रहा है? सेल्स, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन और चेंज इन स्टॉक. मैं बार बार बोला, जो चेंज इन स्टॉक है वही नेट एडिशन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक. ओके, सो इट इज द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट. उसको उसके बारे में सोचना नहीं है, बिकॉज वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकालेंगे. उसको लिख दिया यहाँ पर. ठीक है, अनदर क्वेश्चन कैलकुलेट नेट एनवीएफसी. यहाँ पर सब्सिडी दिया है, सेल्स दिया है, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेजेस. परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज, वो फाइनल गुड है, उसको कुछ टच नहीं करना है. परचेज ऑफ मशीनरी, ओके, परचेज ऑफ मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ नहीं है, ये सब फिक्स्ड एसेट्स है, ये सब फाइनल गुड है. ठीक है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये दिया है. तो फर्स्ट कैलकुलेट जीवीएमपी, फर्स्ट मेथड को जाओ. ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अलग अलग दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अलग अलग दिया है. सो सी एस माइनस ओ एस लेना है. माइनस इंटरमीडिएट परचेजेस यहाँ पर डायरेक्टली दिया है. इंटरमीडिएट परचेजेस में रॉ मटेरियल सब आ जाएगा. इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लेना है, डोमेस्टिक परचेज नहीं लेना है, क्योंकि मैं बार बार बोला था मेरा प्रीवियस वीडियो में, इंटरमीडिएट परचेजेस दिया है मीन्स आपको नहीं लेना है. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स,
ओके कि डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, पेमेंट टू लॉयर्स, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर्स, कुछ नहीं लेना है। इंटरमीडिएट परचेज में सब कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं लेना है यहाँ पर। ओनली इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो दोनों इंटरमीडिएट परचेज इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। इंटरमीडिएट परचेजेस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर दोगे डबल काउंटिंग आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट परचेजेस दिया है तो और किसी को नहीं लेना है। इंटरमीडिएट परचेजेस दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया है, ओनली इंटरमीडिएट परचेज को लेना है क्योंकि उसी को अंदर आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी के अंदर पेमेंट टू लॉयर्स, उसी के अंदर एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर एंड कलर द फैक्ट्री बिल्डिंग, कुछ नहीं लेना है इंटरमीडिएट परचेज है तो वही है माइनस इंटरमीडिएट परचेजेस। तो जीबीएमपी निकाल दो, जी टू एन डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना है, डिप्रिसिएशन दिया है ओके 30 लाख दिया है। फिर एनवीएफसी, एमपी टू एफसी, एनवीएमपी, एनवीएफसी माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, और इंडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर नहीं दिया है। इंडायरेक्ट टैक्स क्या है, ऑल्टरनेट नेम जीएसटी, और क्या है टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, सेम थिंग है। और एक क्वेश्चन में इंडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया गया है तो प्रॉब्लम नहीं, आप फॉर्मूला लिखना है। हम एमपी टू एफसी आएंगे तो इंडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है, और इंडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, सब्सिडीज दिया है, सब्सिडीज 40 लाख दिया है। देखो क्वेश्चन में सब्सिडीज दिया है, क्लियर, सब्सिडी फर्स्ट आई में दिया है, मगर यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया गया है। और जो परचेज ऑफ मशीनरी वो फाइनल गुड है मशीनरी, हो गया। तो एनवीएफसी आपको मिल गया। तो एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड इन सेल्स, ओके सेल्स दिया है तो एक्सपोर्ट नहीं लेना है क्योंकि सेल्स में सब कुछ है। मैं बार बार बोला, सेल्स मीन्स सेलिंग टू हाउस होल्ड सेक्टर, सेलिंग टू अदर फार्म्स एंड सेलिंग इन फॉरेन मार्केट। सेलिंग इन फॉरेन मार्केट मीन्स एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स अलग नहीं लेना है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट परचेजेस, इंटरमीडिएट परचेजेस के अंदर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स आएगा। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज इज द फाइनल गुड। भाई जो क्वेश्चन में जो था ट्रिक था मैं यहाँ पर लिख दिया इंपोर्टेंट पॉइंट में। देन अनदर वन कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम वैल्यू एडेड मेथड में एनवीएफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो जो दिया है देखो, ओके इलेक्ट्रिक चार्जेस, इनकम, जीएसटी ये सब दिया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ये सब दिया है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट में, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स आएगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन आएगा, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक मीन्स माइनस होगा, तीनों चीज लेना है वैल्यू ऑफ आउटपुट में। मैं बार बार बोला सेल्स, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, यहाँ पर सेल्स दिया है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया है। डिक्रीज इन स्टॉक मीन्स वो माइनस होगा क्योंकि डिक्रीज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लेस देन ओपनिंग स्टॉक, तो डिक्रीज इन स्टॉक दिया है माइनस होता है, क्लियर दिया है। देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन सब्सिडीज, जीएसटी मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम कोई इसमें नहीं है, वैल्यू एडेड मेथड इनकम टैक्स नहीं है, ओके जीएसटी ओनली इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, इनकम टैक्स का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्जेस इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया गया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस दिया गया है। इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट परचेज, ओके ये नहीं दिया गया है तो आपको सबको ऐड करना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया है तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ऐड नहीं करना है क्योंकि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इज द पार्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। परचेज मीन्स डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस, पेमेंट टू लॉयर्स, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर सब कुछ लेना है। तो तब आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन मिलेगा, बाय इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो अभी हम क्वेश्चन को चलेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडीज है तो जीबीएमपी देखो, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दोनों पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट जो चेंज इन स्टॉक है वो डिक्रीज इन स्टॉक दिया है तो उसको माइनस करोगे, हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ये सब नहीं दिया गया है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का आईसी कैसे निकालोगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे निकालोगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मगर कभी कभी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स नहीं लेना है। मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, वैल्यू एडेड मेथड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, प्रीवियस वीडियो देखो, मैं क्लियरली मेंशन already it means I discussed once purchase of raw materials given, then separately it means you should not have add imports because imports is the part of purchase of raw materials. Purchase of raw materials, domestic purchase and imports. Imports means purchase from abroad, both included in purchase of raw materials. तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को ऐड करना है। ओके इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या क्या आएगा मैं प्रीवियस वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पेमेंट टू द लॉयर्स फॉर एनी टाइप ऑफ लीगल डिस्प्यूट फेसिंग बाय द फार्म्स,
so they paid to the lawyers. It is also intermediate consumption, intermediate expenditure. और रिपेयर होता है बिल्डिंग का, और कलर हम करते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग को, उसमें जो खर्च होगा वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन आएगा. जो यूनिफॉर्म में प्रोड्यूसर खर्च करता है, बेसिकली प्रोड्यूसर्स प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म्स टू द एम्प्लॉइज, वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन आएगा. और कार ऑल्सो प्रोवाइडिंग टू द हायर ऑफिशियल्स फॉर ऑफिशियल वर्क, हायर ऑफिसर्स फॉर ऑफिशियल वर्क, कार में जो फ्यूल कंजप्शन होगा वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन आएगा. तो यहाँ पर मैं अच्छे से बता दिया, तो यहाँ पर निकाल दो जीवीएमपी. देन एनवीए डिप्रिसिएशन को माइनस करना है. यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो यहाँ पर जीवीएमपी एनवीएमपी सेम होगा. डिप्रिसिएशन नहीं दिया है. डिप्रिसिएशन अल्टरनेट नेम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नहीं है. कभी कभी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर जो कंजप्शन है वो डिप्रिसिएशन है. रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वो डिप्रिसिएशन है. तो एनवीएमपी निकल गया. देन अभी हम एनवीएफसी डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे. तो एमपी टू एफसी इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, सब्सिडी को ऐड करना है. और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी है दिया है, और सब्सिडी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, सब्सिडी नहीं दिया गया है, यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है, तो मिल गया आपको. सो एक्सपोर्ट्स नॉट टेकन सेपरेटली एज इज पार्ट ऑफ सेल्स. इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, मगर यहाँ पर हम इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं. कैलकुलेशंस में इनकम टैक्स का कोई रोल नहीं है. इंटरमीडिएट कंजप्शन इज कैलकुलेटेड एज सम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. अल्टरनेट नेम ऑफ सब्सिडीज फाइनेंशियल असिस्टेंस. डिक्रीज इन स्टॉक दिया जाता है तो उसको माइनस किया जाता है. देखो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम निकाला, माइनस किया डिक्रीज इन स्टॉक. ओके, डिक्रीज इन स्टॉक माइनस सेल्स. ओके, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल कंजप्शन माइनस डिक्रीज इन स्टॉक. डिक्रीज इन स्टॉक दिया है वो माइनस होगा. प्रोडक्शन फॉर सेल कंजप्शन इज द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट में प्रोडक्शन फॉर सेल कंजप्शन में बार बार बोला, वैल्यू ऑफ आउटपुट में तीन चीज आएगा: सेल्स, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल कंजप्शन. चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो उसको माइनस कर दो. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. इंक्रीज इन स्टॉक दिया है, ऐड करो. डिक्रीज इन स्टॉक दिया है, माइनस करो. तो तीनों को आपको ढूंढना है. ओके, सो थैंक यू. सो नेक्स्ट पार्ट I will discuss